কিভাবে দূর হবে আমাদের মোহ? এই আচার্য কি বলছেন? মানুষ ধর্মচর্চা পুজোপাঠ করলেও মোহতে বশীভূত হয়ে পড়ছে, অথচ এই মোহই আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে, মোহই আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু কিভাবে আমরা মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি তা নিয়ে আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন রাখলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শ্রী অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গুলেচা। শুধু এই প্রশ্নই নয়, সঞ্জয়বাবু শুক্রবার 21শে জুলাই আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে এদিন আরও প্রশ্ন রাখলেন। শরীর ভালো রাখার জন্য আজকাল মানুষ প্রাকৃতিক চিকিৎসা করছেন, কিন্তু মনের মধ্যে যে টক্সিক বা ময়লা জমা হচ্ছে, যেমন মোহ, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি, সেসব টক্সিক কিভাবে দূর হবে? আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে আরও প্রশ্ন করা হয়। সব প্রশ্নের জবাব তিনি আধ্যাত্মিক দর্শন থেকে সুন্দরভাবে উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে মেলে ধরেন। আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় বলেন, মোহ আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, একথা ঠিক। তাহলে উপায় হলো মোহর উপর আমাদের চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। কেন আমাদের মোহ, এই প্রশ্ন নিজেকেই করতে হবে। তাই কি কি কারণে বা কোন কোন বিষয়ে আমাদের মোহ রয়েছে তার একটি তালিকা সবার আগে তৈরি করতে হবে। তারপর সেই সব মোহ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। কেন এই মোহ তা নিয়ে নিজের মধ্যে চিন্তা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই অনুশীলন চলতে থাকলে ধীরে ধীরে মোহ দুর্বল হয়ে পড়বে। আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয় অন্য প্রশ্নের জবাবে বলেন, আসন প্রাণায়াম সহ প্রাকৃতিক চিকিৎসা আজকাল এলোপ্যাথি চিকিৎসাকে বিরাট ধাক্কা দিচ্ছে। এটা বেশ ভালো দিক, কিন্তু মানুষের মন সুবিধাবাদী। এমন কোনো ট্যাবলেট নেই যেটা খেলে ক্রোধ বা মোহর মতো টক্সিকগুলো চলে যাবে। এই সব টক্সিক দূর করতে হলে মানুষকে তার মনের মধ্যে গভীর অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে হবে। মনের মধ্যে শুভ ভাব বা সৎ সঙ্গ বা ইতিবাচক ভাবনার অনুশীলন করতে হবে। গত 17 জুলাই শিলিগুড়ির সোমালি মিল কম্পাউন্ডের তেরাপ্রান্ত ভবনে শুরু হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ। শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশন সেখানে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে মানব জীবন এবং গীতার যোগ নিয়ে এক আধ্যাত্মিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। সেই আলোচনা সভায় আলোচনা করছেন হরিদ্বার থেকে আগত আচার্য শ্রী অখিলেশ্বর ভরদ্বাজ মহাশয়। সেখানে আলোচনা শুরুর আগে ভজন সঙ্গীতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে দিচ্ছেন আচার্য। এই অনুষ্ঠান 23শে জুলাই পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল 5টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে, তা চলছে রাত 8টা পর্যন্ত। শিলিগুড়ি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের এই প্রয়াসে তারিফ করছেন অনেকেই। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গুলেচা ছাড়াও প্রজেক্ট চেয়ারম্যান ললিত কুমার গোয়েল, সহ চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালা, ম্যানেজিং ট্রাস্টি দিলীপ আগরওয়ালা, সম্পাদক রাজেশ কন্দই, কোঅর্ডিনেটর চন্দ্রকান্ত মোহতা সহ আরও অনেকে বেশ মন দিয়ে শুনছেন এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জ্ঞান প্রবাহ। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের বক্তব্য থেকে জীবনে চলার পথে অনেক শক্তি বা আলোর বার্তাও পাচ্ছেন বহু মানুষ। कल जो चर्चाएं हम कर रहे थे, आचार्य श्री ने विशेष रूप से हमारी आसक्ति के विषय में कह रहे थे कि कैसे मनसा कर्मणा, मन से अगर हम कर्म और अपने भीतर के कर्ता भाव को छोड़ पाएँ तो जीवन में कितना कुछ परिवर्तन हो सकता है। आज इसी सिलसिले में हम एक जगह गए थे, आचार्य श्री किसी से मिलने गए थे आप चंद्रकांत जी के घर। उन्होंने एक बहुत सुंदर, आचार्य जी ने एक बात रखी वहाँ के सत्संग के दौरान, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि हम घरों में जाते हैं अपने दिन भर के काम करके, और अगर हम कल्पना करें कि घर में सारा उपभोग करते हैं, कमरों का, साफ सफाई का, हर चीज़ का, खाना पीना, लेकिन अगर इस बात का ध्यान न रखें कि ये सारी व्यवस्था किसने की है, या तो माँ ने की है या पत्नी ने की है, लेकिन हम उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाए, हमारे भीतर वो कृतज्ञता नहीं आए, तो बड़ी मुश्किल ये बात है। लेकिन ठीक वैसा ही
हम इस संसार में सारे साधनों का उपभोग कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि अगर हम देखें सुबह से लेकर शाम तक, जब तक जागृति अवस्था है तब तक, और रात में नींद में भी, हम इस संसार में जो परमात्मा ने इतने साधन दिए हैं उन सब का उपभोग कर रहे हैं। हम सब व्यस्त हैं, लेकिन जिसने ये व्यवस्था की है उसके बारे में चिंतन करने का हमें समय नहीं है। तो इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न आचार्य श्री के सामने आ रहा है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्रश्नकर्ता दे रहा है कि मानवों का स्वाभाविक राजा धर्मराज होने के बावजूद इस जगत पर मोह ही राजा है। अगर इस जगत को देखें तो मोह राजा है, और प्रत्येक जीव मोह द्वारा ही वशीभूत होकर चालित हो रहा है। मोह द्वारा आक्रांत मनुष्य समझ ही नहीं पाता वो कहाँ जा रहा है। वह अपने चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वचा आदि इंद्रियों का अवलंबन कर चला जा रहा है, लेकिन कहाँ चला जा रहा है इस पर उसका चिंतन नहीं है। शक्ति शांति की आशा में ही उसकी सारी गति है। देखिए, उसके बावजूद भी शांति की आशा है कि बस मैं इतना कर लूँ फिर शांत हो जाऊँगा, इतना हो जाए फिर शांति हो जाएगी। और यही आशा उसका सारी जिंदगी का भरोसा है। उसने परमात्मा का भरोसा करना नहीं सीखा, उसने इस आशा का भरोसा किया है कि इतने कर्म कर लूँ तो शांति मिल जाएगी। और यही आशा उसका अवलंबन है, उसका भरोसा है। हम सभी सुख की आशा में ही जीवन में विभिन्न कर्म किए जा रहे हैं और उसी क्रम में विभिन्न दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या है? इस प्रकार जीवन को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस विषय पर हमारा चिंतन क्यों नहीं आ रहा है? मनुष्य निष्ठा के साथ धर्म पथ का अनुगामी न होकर केवल शब्दों से ही धर्मानुशीलन करता है। भगवान के गुणों की विभिन्न रूपों की थोड़ी प्रशंसा, पूजा पाठ आदि करके ही और फिर वो जगत के अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है। अपनी सारी आसक्ति के साथ इस संसार के सभी कार्यों में व्यस्त रहता हुआ वो भगवान का नाम केवल फॉर्मेलिटी के लिए लेता है, और उसे कोई संशय भी नहीं होता कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। वो कहता है मैं तो बहुत धार्मिक हूँ। मोह ही जीवन का गुप्त परामर्शदाता हो गया है। परमात्मा से परामर्श लेने की बजाय, उसके हृदय में जो परमात्मा रहते हैं उनसे परामर्श लेने की बजाय वो अपने मोह से परामर्श लेता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सुनेंगे, इसी प्रकार के धन, मान और इन सब के चेष्टा में वो दिन रात लगा हुआ है। मोह परम प्रताड़क है। वो शास्त्र की बातों को मोह अस्वीकार भी नहीं करता, परंतु वह उन्हें पालन भी नहीं करने देता। आचार्य श्री इस मोह का हम क्या करें, जो हमें कहता तो है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका पालन भी करने नहीं देता। प्रश्नोत्तरी में काफी वजनदार प्रश्न हमारे सामने आया है। बहुत वजन है इसमें कि होना तो ये चाहिए कि भाई धर्मराज के द्वारा भी फैशन हो तो गया है, चिंतन चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर चिंतन हम शरीर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि हमारा BMI कितना होना चाहिए, दिन भर में 10,000 स्टेज चले या नहीं चले, हफ्ते भर में WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी है। इन सब पर चिंतन चल रहा है कि हमें किसी कैंप में जाके साल में एक बार जरूर डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। बहुत आजकल बहुत चलन हो गया है प्राकृतिक चिकित्सालय में जाने का। हर वर्ष लोग कुछ न कुछ समय लेकर के प्राकृतिक चिकित्सालय में जा रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग शरीर के अलावा मन में जो टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं, मन में जो कचरा जमा हो रहा है, अपने विचारों की स्थिति क्या चल रही है, हमारी वृत्तियों का क्या हालचाल है,
हमारा टेम्परामेंट कैसा बन रहा है। हम इरिटेबल है, हमको बात बात पे गुस्सा आता है, या अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अंदर क्रोध है, क्या इस पर काम करते हैं? तो आचार्य श्री हमें बताइए कि क्या शरीर के बाद जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या इनका कोई एक्सेप्टेबल बीएमआई नहीं होना चाहिए कि इनका भी एक कोई इतना भारी रहे भाई से? ये बताएं कि हम इस तरफ कैसे ध्यान दें, इस तरफ हम कैसे बढ़े। अगर है उसको आप संभालना चाहते हैं, बढ़िया रखना चाहते हैं, तो ये जो ध्यान रखना कि मेरा वजन कैसा चल रहा है, मेरा बीपी कैसा है, मेरे शुगर का लेवल क्या है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब आचार्यों का जिन्होंने पिछले कुछ वर्ष में आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से एलोपैथी को चुनौती देने का काम किया। नहीं तो ऐसा लगता था कि एलोपैथी की गोली के बिना व्यक्ति शरीर को ठीक नहीं रख सकता। लेकिन कोई अगर ये माने कि प्राकृतिक चिकित्सा में जाने से, आसन प्राणायाम करने से, शरीर का वेट मेंटेन करने से जीवन की सफलता पूरी हो गई, तो ये बात जरूर है। अवश्य ही जो आपका प्रश्न है कि जैसे शरीर के बारे में तो हम ये जानते हैं कि इतना वजन होना चाहिए, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो मजाक की बात जो आपने लास्ट में पूछी कि कोई ऐसा भी तो क्राइटेरिया हो कि अहंकार हो तो कितना होना चाहिए, ईर्ष्या हो तो कितनी होनी चाहिए तो इस तरह मोह अगर है तो कितना होना चाहिए, तो द्वेष है तो कितना होना चाहिए, कोई इसका भी कोई लिमिट है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पूछा। अब आप देखिए कि मनुष्य सुविधा भोगी है। क्या है? सुविधा भोगी। जो काम सुविधा से हो सकता है उसको तो कर लेगा, लेकिन जैसे उसको देखेगा कि ये काम बहुत कठिन है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, फलाहार या तरह तरह के शरीर को मेंटेन करना फिर भी सरल है। अपने भीतर के इन विकारों को ठीक करने के लिए योजना बनाना और काम करना बहुत मुश्किल है। तो आदमी सोचता है मुश्किल काम है, छोड़ दे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। हम छोड़ तो देते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं वो और मजबूर हो जाता है। इसमें छोड़ना नहीं है। ये जो आप डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी में एक चेतना जागृत कर रहे हैं, ये चेतना ही स्वाध्याय की प्रवृत्ति, जाप करने की प्रवृत्ति, ध्यान लगाने की प्रवृत्ति आपको अंदर जाके उनको ठीक करने में मदद करती है। और कोई रास्ता नहीं। वेद ने कहा नान्य पंथा विद्यते है। तुम सोचो कि कोई बाहर कोई टैबलेट होगी उसको खा लें तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, बाहर कोई दवाई मिलेगी उसको खा लें तो मोह चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको इनर जर्नी करनी पड़ेगी, अंदर की यात्रा में निकलना पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं। उसी समय ये मन ज़्यादा क्यों भागता है ना? ऐसा हमको आपने पूछा है, ये सिलीगुड़ी में बहुत पूछते हैं। भगवान की दया से लगभग 40 वर्ष हो गए व्यास गति में बैठकर धर्मशास्त्र की सेवा करते हुए, वेद कथा, गीता कथा, उपनिषद कथा। तो सभी का ये प्रश्न, ये अनुभव है, जो आपका अनुभव है वो सबका अनुभव। इसलिए प्रश्नकर्ता ने एक तरह से ये प्रश्न उठा करके सबके कल्याण के लिए बात रखी है कि ऐसा स्वाभाविक है कि पूजा के ही समय, जाप के ही समय इतना मन क्यों भागता है? तो उसका उत्तर एक समझने लायक ये है मनोवैज्ञानिक, मन बाकी समय में भी भाग रहा था, लेकिन आपको पता नहीं था, क्योंकि आप
अपने मन पसंद के काम में मग्न हैं। मन तब भी एकाग्र नहीं था जब आप मनपसंद साड़ी खरीद रही थी, मनपसंद कोट पैंट खरीद रहे थे, मनपसंद पिक्चर देख रहे थे, वो शांत तब भी नहीं था, लेकिन वो आपके पसंद का काम था, तो आपको अपने भागते हुए मन का एहसास नहीं। प्रणाम कीजिए प्रभु के चरणारविंद को, जिनके यहाँ बैठते ही कम से कम पता तो लगता है कि मन भागता है। जो बैठते हैं पूजा में, जो जाप में माला लेके बैठते हैं, उनको पता लगता है कि मेरा मन भागता है, तभी पता। तो ये तो ऐसे ही है कि आपके घर के बगल की सड़क में हमेशा ट्रैफिक रहती है, लेकिन खिड़की बंद हो तो दिखाई नहीं देता। आप कहोगे ट्रैफिक तो था ही नहीं पहले, तो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? अरे भाई, तुम खिड़की में नहीं आए थे, भीड़ तो पहले भी थी। तुम अपनी खिड़की बंद करके एसी चला के बैठे थे तो सड़क देखने नहीं थे, अब आप बाहर आए तो दिखा। ठीक इसी तरह से आपका मन भागता है, आपका मन दौड़ता है और चंचल है। जब आप धर्म कर्म में मन लगाना चाहते हैं, तब आपको उसकी सच्चाई दिखाई देती है। तो अब अगला प्रश्न आता है, इसका करें तो क्या करें, है ना? ये करें तो क्या करें होता राज क्या होता। तो इसीलिए तो श्री अरविंद जी आपके सामने ऐसे दिव्य साहित्य की सृजना करके गए। बहुत सरल काम है। जब भी शायद आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, किसी भी तरह से पूजा में मन लगाना भी मुश्किल पड़ेगा, अगर किसी अध्यात्म की किताब को अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करें, तो आपका अत्यंत चंचल मन भी एक व्यवस्था में काम करना शुरू करेगा। और ऐसा हो सकता है कि अच्छा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन शांत हो, किताब आप रख देंगे और आप ध्यान में चले जाएंगे और शांत मन का आनंद लेंगे। तो आज इतना कहना चाहूँगा, जो सबके लिए संभव है, कि आप किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन करना शुरू कीजिए तो मन एकाग्र हो जाएगा। मोह भी राजा बना हुआ हमें चला रहा है। और सारी उसके परिणाम की चर्चा करने के बाद प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम इस मोह का करें तो क्या करें। एक प्रश्न है, एक बार प्रश्नकर्ता के लिए ताली बजाते हैं। कल क्या खाना है, ये तो प्रश्न आता है। कल क्या पहनना है, ये भी प्रश्न आता है। लेकिन ऐसे प्रश्न आते नहीं, जबकि ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। जिंदगी जा रही है और जो प्रश्न सही आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो फिर उत्तर कहाँ आएगा? अभी तो प्रश्न ही नहीं आया है। प्रश्न जीवन में आना चाहिए। ये भी ऋषि परंपरा है। महर्षि अरविंद जी के 150वें जन्मोत्सव में मनुष्य इतना भी कर ले कि जो सही प्रश्न है वो करना सीख जाए। तो आपका ये प्रश्न जो है, इसके ऊपर अभी जो मुझे गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के और श्री अरविंद जी जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से एक उत्तर समझ में आता है कि इस मोह का करें तो क्या करें, क्या करिएगा इस मोह का। क्योंकि ये मोह कोई कपड़े की तरह तो है नहीं कि इसको उतार करके खूंटी में टांग दे और एक नया कपड़ा पहन के चल पड़े। मोह तो एक जन्म जन्म से अंदर एकत्रित वृत्ति है। वृत्ति, जो चीज अच्छी लगी है उसी में ही आसक्त रहने की वृत्ति को मोह कहते हैं। जबकि जिंदगी ऐसी है, मोह ये कहता है कि इसको छोड़ना नहीं है, और जिंदगी जो है हर चीज को छुड़ा रही है। जिंदगी में कौन सी चीज आपके पास में रही जिसको आप बहुत पसंद करते थे,
जो नौजवानी में बहुत खूबसूरत थे और आज 70 को पार कर रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठे हों, बहुत अच्छी बात। तो आपकी जवानी बहुत खूबसूरत रही होगी। तो जब शीशे के सामने आप अपने आप को देखते होंगे तो उसमें आपका मोह तो था कि मैं ऐसे ही फूटेड फूटेड रहूँ, नौजवान रहूँ। लेकिन मोह करने से जवानी बचाई तो नहीं जा सकी, वो तो चली गई। मोह करने से हम जीवन के नियम को बदल नहीं सकते, केवल अपने क्लेश को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मोह को मिटाने के लिए मोह में जो माँ है, इसमें से एक नया शब्द ले लीजिए, मनन। क्या लेना है? मनन। हम मोह के दबाव में वो जैसा कह रहा है वैसा किए तो चले जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं कर रहे कि मुझे मोह क्यों है। जैसे आपने प्रश्न किया, इस मोह का करें तो क्या करें, इसी पर अगर आपने काम करना है तो इस कथा के पावन दरबार से एक संकल्प लिया जाए कि हम मोह पर चिंतन करना शुरू करें। जैसे भर्तृहरि जी ने चिंतन किया और पूरे विश्व को एक प्यारा सा श्लोक दिया। कहते हैं, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्ग विहगा। कहते हैं इस जीवन में आशा नाम की एक नदी बह रही है। कोई आशा नाम की माँ बहन बैठे तो नाराज नहीं हो। ये एक वृत्ति के लिए शब्द है, आशा। आशा नाम की नदी बह रही है और उस नदी में जल कौन सा है? मनोरथ जल। तो मोह क्या करता है कि आशा की नदी को आपके सामने लाता है और उसमें मनोरथ का जल डाल देता है। और तृष्णा तरंगा कुला, उसमें जो लहरें उठती हैं वो तृष्णा की, ये हो गया, ये हो रहा है, ये होगा, बस इसी में ही हम लगे रहते हैं। तो जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम धर्म कर्म करते हैं, लेकिन एक संतोष के लिए करते हैं कि शायद इससे हम धार्मिक कहलाएंगे या हमारा जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो जितने भी इस समय धर्म कर्म हो रहे हैं वो मनोरथ के लिए हो रहे हैं कि फलानी जगह जाएंगे तो ये जो मेरी मनोकामना है, मेरे घर की मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाएगी। तो हम धर्म से मनन को प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि अपने मोह को और मजबूत कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके प्रश्न का, क्योंकि समय कम है, एक ही उत्तर रहेगा। आज आपके अंदर किस किस चीज़ के लिए मोह है, आपने डायरी तो रखी हुई है। अब हम दूसरी कथा अभी करने वाले नहीं हैं, हमारे को गीता की कथा का काम। उस डायरी में एक लिस्ट बनाइए कि किस किस चीज़ में आपको अधिक मोह है। सारी चीज़ें तो नहीं लिखना, तो उस चीज़ पर मनन करना शुरू कीजिए कि क्या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मनन आरंभ होते ही मोह की ताकत कम हो जाएगी। धन्यवाद आचार्य जी।